So we did discuss about neo-Mendelism in the last lecture, and we also discussed about something called as Morgan's experiments that showed linkage and crossing over, and then we discussed about autosomal inheritance. Basically, autosomal inheritance is the inheritance that happens through those chromosomes which are not sex-linked. They are the chromosomes that that are the other chromosomes along with the sex chromosomes that get inherited. As you are already aware, 23 plus X or 23 plus Y is what determines the child's genetic hereditary. The 22 chromosomes that are there are autosomes because they are not related to sex chromosomes, and that is your autosomal inheritance. Today we are going to discuss something called as sex-linked inheritance. Genes located on non-homologous region of sex chromosomes are called sex-linked genes. The traits that are determined by sex-linked genes are called sex-linked traits. The inheritance of sex-linked genes from parents to their offspring is called sex-linked inheritance. There are two types of sex-linked genes as X-linked genes and Y-linked genes. तो जो जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन में है सेक्स क्रोमोसोम्स के, उसी को हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स. इनके जो ट्रेट्स हैं वो इसी जीन्स से डिटरमाइन होते हैं, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स भी कहते हैं. और ये इनहेरिटेंस जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में होता है. इसमें दो टाइप है, एक है एक्स लिंक्ड जीन्स और एक है वाई लिंक्ड जीन्स. X-linked यानी sex-linked genes. The X-linked genes are located on non-homologous region of X chromosome, and these genes do not have corresponding alleles on Y chromosome. Female has two X chromosomes. In female, two recessive sex-linked genes are required for express of sex-linked traits. If one X chromosome carries a recessive gene for sex-linked trait defect, its effect is suppressed by the dominant gene present on other X chromosome. The females with one recessive gene are carriers. The carrier female is physically normal as she does not suffer from the disease. Male has only one X chromosome. If X chromosome carries X-linked recessive gene for sex-linked trait, then it is expressed phenotypically because there is no dominant gene on Y chromosome to suppress its effect. Therefore, sex-linked X-linked traits appear more frequently in males than in females. Example of X-linked traits include hemophilia, color blindness, night blindness, myopia, muscular dystrophy, etc. तो X-linked क्रोमोसोम जो है वो नॉन होमोलोगस रीजन में होता है X क्रोमोसोम के, और उसका कोई करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम नहीं है Y क्रोमोसोम एलएलए में. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर एक रिसेसिव जीन है तो उसको ओवरपावर करने के लिए एक डोमिनेंट जीन होना चाहिए जो उसको कवर करता है. बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास वैसा और करस्पॉन्डिंग जीन नहीं है, तो आपका रिसेसिव जीन जो है उसका असर फिनोटाइपिकली दिखने लगेगा. फीमेल में आप लोग को ऑलरेडी मालूम है दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. क्योंकि उनके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर कोई एक रिसेसिव जीन उनके अंदर है भी तो वो सिर्फ उसको कैरी करेंगे फॉरवर्ड. उस जीन का असर इनके ऊपर नहीं होगा क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग में एक डोमिनेंट जीन होगा जिसका असर दिखाई देगा, और उस वजह से रिसेसिव जीन में जो नेगेटिव बीमारी है जो भी है उसका असर उस फीमेल के ऊपर नहीं होगा, बट वो कैरी करेगी. अगर वैसी फीमेल एक लड़के को जन्म देती है तो अब उस लड़के में वो एक्स क्रोमोसोम से वो डिफेक्ट ऑटोमेटिकली फिनोटाइपिकली दिखेगा, और ये डिफेक्ट दिखने की वजह से क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्रोमोसोम में कोई भी एलएलए नहीं है इसको कवर करने के लिए, इसको डोमिनेट करने के लिए, तो उसमें ये असर दिखने लगेगा. और यही कारण है कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक जो रिसेसिव जीन है वो आदमियों में ही दिखाई देता है, औरतों में नहीं दिखाई देता, क्योंकि औरतों के दोनों क्रोमोसोम्स XX होते हैं जिसमें डोमिनेंट जीन करस्पॉन्डिंग हो सकता है. इसकी बीमारियों के एग्जांपल्स हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया और मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी यहाँ पे मसल जो है वो करने लगते हैं, डी शेप हो जाते हैं, उनका नॉर्मल शेप नहीं रहता. मायोपिया यानी कि दूर का नहीं दिखाई देता. नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नहीं दिखाई देता. कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर नहीं दिखाई देते. उसमें एक टोटल कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस होता है. पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन और ब्लू जो है वो ग्रे दिखाई देता है, और टोटल कलर ब्लाइंडनेस में सारे कलर जो हैं वो या ब्लैक, व्हाइट और उसके शेड्स में ही दिखाई देते हैं. जैसे पुराने ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कैसा दिखता था, वो जिस व्यक्ति को टोटल कलर ब्लाइंडनेस है उसको हमेशा वैसा ही दिखाई देगा. Y-linked यानी पोलैंड्रिक जीन्स. Genes located on non-homologous genes of homologous region of Y chromosome are called Y-linked genes.
The Y-linked genes are inherited directly from male to male. In man, the Y-linked genes such as hypertrichosis is responsible for excessive development of hair on pinna of ear. This character is directly transmitted directly from father to son. तो वाई लिंक यानी होलैंड्रिक जो जीन्स है वो हमेशा ऑब्वियसली फादर से सन में ही जाएंगे, क्योंकि ना मदर के पास वाई क्रोमोसोम्स है ना डॉटर के पास वाई क्रोमोसोम्स है। ये कारण है कि ये जो अगर कोई रिसेसिव ट्रेट वाई जीन का होगा, होलैंड्रिक होगा, तो वो फादर से सन को ही जाएगा। उसमें से एक एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में कान के बीच में जो पिनिया होता है उसमें बहुत सारे बाल होते हैं। आप लोगों ने कभी आदमियों के ही कान में बाल देखे होंगे, कभी औरतों के कान के ऊपर बाल नहीं आते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज ये जो है ये एक वाई क्रोमोसोम जीन फैक्टर का है, जो कि ऑब्वियसली औरतें कैरी ही नहीं करती। तो अगर उनके अंदर वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो उनको हाइपरट्राइकोसिस होने का चांस ही नहीं है। ये डायरेक्टली फादर टू सन में ही ट्रांसमिट होता है। Color blindness. Color blindness is X-linked recessive disorder where person is unable to distinguish between red and green colors as both the colors appear gray. It is caused due to recessive X-linked genes X is to C, which prevents formation of color-sensitive cells, the cones in the retina of the eye. The homozygous recessive females XC and the hemizygous recessive male XCY are unable to distinguish between red and green colors. The frequency of colorblind women is much less than colorblind men. Dominant X-linked gene X is necessary for formation of color-sensitive cells in the retina of eye. Thus, genotype of male and female individuals can be expressed as follows: male XCY, colorblind XCY, carrier is not there. Female XC, colorblind XC, and carrier can be XC and X small c. The capital C is basically the one that is a dominant gene that does not that allows the sensitivity formation. The small c is basically the recessive hormone that stops that formation. तो अगर दोनों स्मॉल हैं तो वो फीमेल कलर ब्लाइंड है। अगर एक स्मॉल और एक लार्ज है तो लार्ज वाला यानी डोमिनेंट जीन का असर होने की वजह से वो सिर्फ कैरियर होगी, और अगर दोनों लार्ज है तो वो नॉर्मल है। The inheritance of color blindness can be studied in the following two types of marriages. Marriage between colorblind male with normal female will produce normal vision male and female offspring in F1. The sons have normal vision but daughter will be carrier for the disease. Marriage between carrier female and normal male will produce female offsprings with normal vision, but half of them will be carriers for the disease. Half of male offsprings will be normal, while half of remaining will be colorblind. From above example, it is clear that the X-linked recessive gene for color blindness is inherited from colorblind father to his grandson through his daughter. This type of inheritance is called as criss-cross inheritance. तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक तरह का एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जहाँ पे व्यक्ति जो है लाल और हरे कलर के बीच में फर्क नहीं कर पाता, दोनों उसे ग्रे ही दिखाई देते हैं। इसमें एक रिसेसिव जीन होता है जहाँ पे X is to C होता है। अब ये जो है ये आंखों के अंदर कोन्स फॉर्म करने में को रोक देता है, जिसकी वजह से कलर का डिस्टिंग्विश नहीं होता। जब आप लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर या लास्ट ईयर आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपने देखा था कि आंख के अंदर कुछ कोन्स होते हैं जो कलर पॉइंट करते हैं, और कुछ एरोज होते हैं जो कि लाइट को फील करते हैं, लाइट के ऊपर सेंसिटिविटी फील करते हैं। अगर कोन्स बनेंगे ही नहीं तो फिर आप आंख में कोई भी कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसमें दो तरीका है, एक अगर रिसेसिव फीमेल है यानी कि कलर ब्लाइंड है, दोनों जीन जो है, दोनों एलएलए जो है वो रिसेसिव है, और एक है जो रिसेसिव मेल है जिसमें ऑब्वियसली एक ही जीन होगा, क्योंकि एक्स उसमें एक ही क्रोमोसोम है, उसका करस्पॉन्डिंग वाई क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली वैसा कोई ये नहीं है, एलएलए नहीं है। तो इसमें क्या है, क्योंकि फीमेल में एक चांस है अगर डोमिनेंट जीन हुआ तो उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, इसलिए फीमेल को कम होता है और आदमियों को ज्यादा होता है। अगर मेल चाइल्ड है और उसके अंदर रिसेसिव जीन नहीं है तो वो नॉर्मल होगा, अगर रिसेसिव जीन है तो वो कलर ब्लाइंड होगा। फीमेल में दो चांस हैं, अगर रिसेसिव जीन के ऑपोजिट में डोमिनेंट जीन है तो वो कैरियर होगी, और अगर रिसेसिव जीन है तो वो कलर ब्लाइंड होगी, और अगर दोनों डोमिनेंट जीन है तो वो नॉर्मल होगी। इसके ऊपर समझने के लिए आप दो एग्जांपल देख सकते हो। अगर मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल नॉर्मल है तो जो मेल चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा, और जो फीमेल चाइल्ड होगी वो कैरियर होगी। अब यहाँ पे आप समझो, मेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल नॉर्मल है। इस केस में लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लड़की जो होगी वो कैरी करेगी, वो जीन को कैरी इसलिए करेगी क्योंकि उसकी मदर नॉर्मल थी, तो मदर का डोमिनेंट जीन ने फादर के रिसेसिव जीन को कवर कर लिया, लेकिन अब वो कैरी कर रही है। तो अगर अब उसको लड़का होता है तो, और अगर अब उसको लड़का होता है, फादर कलर ब्लाइंड हो या ना हो, तो भी उस फीमेल का जो लड़का होगा यानी कि वो मेल का ग्रैंडसन,
थ्रू हिज डॉटर, वो कलर ब्लाइंड होगा, जैसे यहाँ पे 3.10 में क्लियर कट बताया गया है, ठीक है। उसी तरह अगर कैरियर फीमेल जो है वो डॉटर है और नॉर्मल मेल से अगर ऑफस्प्रिंग होते हैं तो फीमेल ऑफस्प्रिंग में नॉर्मल विजन होगा आधे में और आधे में कैरियर होंगे, और मेल ऑफस्प्रिंग में से आधे जो हैं वो नॉर्मल होंगे और आधे कलर ब्लाइंड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरियर डॉटर है, नॉर्मल मेल है। अब इनके थ्रू जो F1 बन रहा है उसमें नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल और एक कलर ब्लाइंड मेल भी होगा, यानी 25% जो है वो कलर ब्लाइंड मेल होंगे, और जो फीमेल होगी वो कैरियर होगी। मेल या तो नॉर्मल होगा या कलर ब्लाइंड डायरेक्टली होगा। इस टाइप के इनहेरिटेंस को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एनी क्वेश्चंस? Hemophilia, bleeder's disease. Hemophilia is X-linked recessive disorder in which blood fails to clot or coagulates very slowly. The genes for normal clotting are dominant over the recessive genes for hemophilia. The person having recessive gene for hemophilia is deficient in clotting factors 8 or 9 in blood. Even minor injuries cause continuous bleeding. Hence, hemophilia is also called as bleeder's disease. The recessive gene for hemophilia is located on non-homologous region of X chromosome, as there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress its expression, so men suffer from this disease. Women suffers only when both X chromosome have recessive gene alleles. The genotype of male and female individuals can be expressed as follow: normal X dominant HY, X recessive HY is hemophilic, female dominant is normal, both recessive is hemophilic, one dominant, one recessive is a carrier. Like color blindness, hemophilia also shows criss-cross inheritance. The inheritance of hemophilia can be shown with the help of following example. Marriage between hemophilic male and normal female will give you carrier daughters and normal sons. Marriage between carrier female and normal female will give you normal female, normal male, carrier female and hemophilic male. Again, like color blindness, in this case also only one male will, if they have two males and two female children, one will be hemophilic, one female will be normal, one will be carrier and one male will be normal. So this happens at the first filial generation only. तो हीमोफीलिया में भी जिस तरह से कलर ब्लाइंडनेस में होता है, ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जहाँ पे ब्लड या तो क्लॉट नहीं होता या बहुत धीरे धीरे होता है। इसमें जो जीन्स क्लॉटिंग के लिए जरूरी हैं वो अगर डोमिनेंट होंगी अगर रिसेसिव जीन्स में, तो ये या तो कैरियर बनेंगे या फिर नॉर्मल रहेंगे। कैरियर जो है वो विमेन बनती है, और इसमें विमेन सिर्फ तभी इस बीमारी के शिकार होंगी जब दोनों के दोनों एक्स जीन्स जो है हेमोफीलिया के वो रिसेसिव होंगे। मेल के पास क्योंकि करस्पॉन्डिंग एक्स जीन नहीं है वाई क्रोमोसोम में, तो वो ऑटोमेटिकली सीधा इसका शिकार हो जाएगा। अगर उसकी मदर कैरियर होती है तो ऑटोमेटिकली मेल चाइल्ड का एक अच्छा खासा चांस है कि वो उसमें उस बीमारी से ये हो सकता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सेक्स डिटर्मिनेशन। The mechanism by which sex is established is termed as sex determination. The term sex refers to sexual phenotype. In some species, both male and female reproductive organs are present in same organism. It is described as bisexual, hermaphrodite, or monoecious. On the other hand, some species in which the organism has either male or female reproductive organs is said to be dioecious or unisexual. Humans are dioecious. German biologist Henking in 1891, while studying spermatogenesis of the squash bug Anasa christis, noted that 50% of sperms receive the unpaired chromosomes while other 50% of sperms do not receive it. Henking gave a name to this structure as the X body, but he could not explain its role in sex determination. Further investigations by other scientists led to conclusion that the X body of Henking was in fact a chromosome and gave the name X chromosome. तो जिस मैकेनिज्म से सेक्स डिसाइड होता है उसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का यानी सेक्सुअल फिनोटाइप क्या है वो बताना। किसी स्पीशीज में दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। इन स्पीशीज को हम बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोएशियस कहते हैं, और जिसमें अलग एक ही ये होता है या तो मेल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम डायोशियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो डायोशियस हैं। जर्मन बायोलॉजिस्ट हेंकिंग ने 1891 में ये पता लगाया कि एक स्क्वॉश बग था अनासा क्रिस्टिस, उसके अंदर 50% स्पर्म्स जो थे उसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम था और बाकी के 50% में नहीं था।
जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम थे उसने उसको एक्स बॉडी कहा, और बाद में रिसर्च से पता चला वो एक्स बॉडी जो है वो एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम है, जो कि किसी मेल के स्पर्म में 50% ही होगा, क्योंकि बाकी के 50% उसके वाई क्रोमोसोम होते हैं। Sex determination in human beings. The chromosomal mechanism of sex determination in human beings is XXXY type. In human beings, the nucleus of each somatic cell contains 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes. Out of these 22 pairs are autosomes and one pair of sex chromosome. Human female has a pair of XX homomorphic sex chromosomes, while male has XY heteromorphic sex chromosomes. Thus, genotype of female is 44 plus XX, male is 44 plus XY. During gamete formation in male, the diploid germ cells in testes undergo spermatogenesis to produce two types of haploid cells. 50% sperms contain 22 autosomes and X chromosome, while 50% sperms contain 22 autosomes and Y chromosome. In female, the diploid germ cells in ovary undergo oogenesis to produce only one type of egg. All egg contains 22 and X chromosome. Thus, human male is heterogametic and female is homogametic. A sperm containing X chromosome fertilizes egg, then diploid zygote is formed and that grows into a female child. If sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, then the zygote is formed that grows into a male child. This indicates that the sex of a child depends on the type of sperm fertilizing the egg, and hence the father is responsible for determination of sex of child and not the mother. Due to lack of knowledge, women are often blamed for giving birth to a female child. तो क्रोमोसोमल मैकेनिज्म जो है ह्यूमन बीइंग्स का, उसको XXXY टाइप में बांटा गया है। न्यूक्लियस जो हर एक सोमैटिक सेल का है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। 23 पैर में से 22 जो है वो ऑटोसोम होते हैं और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल के अंदर 44 क्रोमोसोम्स प्लस XY होता है, फीमेल के अंदर 44 क्रोमोसोम्स प्लस XX होता है। अब क्योंकि मेल के अंदर XY दो अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, तो जो गैमेट बनता है हैप्लॉइड सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, इसके अंदर 22 क्रोमोसोम्स जो हैं 22 प्लस X बनता है एक टाइप के स्पर्म में, और दूसरे टाइप के स्पर्म में 22 प्लस Y बनता है, यानी कि 50% मेल क्रोमोसोम कैरी करते हैं और 50% फीमेल क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जिसमें से अब डिटरमाइन होगा कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। क्योंकि अगर 22 प्लस X क्रोमोसोम ने फर्टिलाइजेशन किया तो उसमें से जो अब जाइगोट बनेगा फीमेल चाइल्ड का बनेगा, और 22 प्लस Y क्रोमोसोम ने अगर फर्टिलाइजेशन किया तो इसके अंदर जो ये बनेगा वो जाइगोट बनेगा और मेल चाइल्ड का बनेगा। तो टेक्निकली साइंटिफिकली स्पीकिंग फादर ही डिसाइड करता है कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। ऑब्वियसली उसका कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज के ऊपर, बट स्पर्म्स ही डिटरमाइन करते हैं कि चाइल्ड जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल जो पेरेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम्स ही देती है, उसके पास Y क्रोमोसोम का ऑप्शन है ही नहीं। एनी क्वेश्चंस? Sex determination in birds. In birds, the chromosomal mechanism of sex determination is ZWZZ type. In this type, females are heterogametic and produce two type of eggs. 50% X carry Z chromosome while 50% X carry W chromosome. Males are homogametic and produce one type of sperms. Each sperm carries a Z chromosome. Thus, sex of individual depends on the kind of egg fertilized by the sperm. इंसानों से एग्जैक्टली ऑपोजिट बर्ड्स में क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ZW और ZZ टाइप का है। इसके अंदर फीमेल सिर्फ एक टाइप का ही एग बनाती है, सॉरी फीमेल जो दो टाइप का एग बनाती है, एक में Z क्रोमोसोम होता है और एक में W क्रोमोसोम होता है, और मेल जो है वो सिर्फ एक टाइप का स्पर्म बनाते हैं Z वाला। यानी कि अगर फीमेल एग जो है वो भी Z है तो मेल बर्ड होगा, और फीमेल एग जो है वो अगर W है तो फीमेल बर्ड होगा। एनी क्वेश्चंस? Sex determination in honeybees. In honeybees, chromosomal mechanism of sex determination is haploid-diploid type. In this type, sex of individual is determined by the number of set of chromosomes received. Female are diploid, 2n is equal to 32, and males are haploid, n is equal to 16. The female produces haploid eggs by meiosis, and male produces haploid sperms by mitosis. If the egg is fertilized by sperm, the zygote develops into a diploid female, 2n is equal to 32, which is queen and worker. An unfertilized egg develops into haploid male, n is equal to 16, drone by way of parthenogenesis. The diploid female gets differentiated into either worker or queen depending on the food they consume during their development. Diploid larvae which get royal jelly as food develops into queen, fertile female, and other develops into workers, for sterile males. तो क्वीन हनी बी में क्या होता है, हनी बी में कितने
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इससे डिटरमाइन होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। फीमेल डाइप्लॉइड होती है 2n=32 और मेल हैप्लॉइड होते हैं n=16। फीमेल एग्स बनाती है मायोसिस से और मेल स्पर्म्स बनाते हैं माइटोसिस से। अगर एग्स फर्टिलाइज हो जाएगा तो या तो वो डाइप्लॉइड फीमेल बनेगा जो या तो क्वीन भी होगी या वर्कर भी होगी, या तो फिर हैप्लॉइड मेल बनेगा जो कि अनफर्टिलाइज एग से बनता है, और यहाँ पे वो ड्रोन बनेगा जो कि छत्ते के चारों तरफ गश्त लगाते हैं, वो ड्रोन बीज होते हैं, वो मेल होते हैं। डाइप्लॉइड फीमेल या तो वर्कर या क्वीन बनेगी, और इस पर डिपेंड करता है कि जब वो लार्वा होती है तो उसको खाना कैसा मिलता है। अगर उसको अच्छा खाना मिलता है तो वो फर्टाइल फीमेल बनेगी, और अगर नहीं मिलता है तो बाकी सारे की सारी फीमेल्स जो हैं स्टेराइल होती है। एक छत्ते में एक ही क्वीन भी होती है जो कि रिप्रोड्यूस कर पाती है, और बाकी सारी की सारी फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती है। यानी कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के जो हो रहा है हैप्लॉइड मेल है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हो रहा है वो फीमेल है। ये हनी बी के अंदर होता है। एनी क्वेश्चंस? Genetic disorders. Genetic disorders are broadly grouped into two categories as Mendelian disorders and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly caused due to alteration or mutation in the gene. Example: thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia, phenylketonuria, etc. On the other hand, chromosomal disorders are caused due to absence or excess of one or more chromosomes or their abnormal arrangement. For example, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है इसमें अगर जीन के अंदर कुछ ऑल्टरेशन या म्यूटेशन होता है तो ये होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और फिनाइलकेटोनुरिया। और इसी के ऑपोजिट में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अगर एक या दो क्रोमोसोम ज्यादा हैं या आगे पीछे हैं या इनका अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो फिर क्रोमोसोमल ये होता है। छुट्टी है। इसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ ठीक है, उसको बुक्स में लेके आ सकते हैं। थैलेसीमिया। Thalassemia is an autosomal inherited recessive disease. Hemoglobin molecule is made of 4 polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta chains. The synthesis of alpha chains are controlled by two closely linked genes, HBA1 and HBA2 on chromosome 16, while the synthesis of beta chain is controlled by a single gene, HBB on chromosome 11. Depending upon which chain of hemoglobin is affected, thalassemia is classified as alpha thalassemia and beta thalassemia. It is caused due to deletion or mutation of gene which codes for alpha and beta globin chains that result in abnormal synthesis of hemoglobin. In thalassemia, person shows symptoms like anemia, pale yellow skin, change in size and shape of RBC, slow growth and development, dark urine, etc. Massive blood transfusion is needed to these patients. Thalassemia differs from sickle cell anemia. The former is a qualitative problem of synthesizing few globin molecule, while the latter is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functional globin. तो थैलेसीमिया जो है कि ऑटोसोमल है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में नहीं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के थ्रू आता है। ये एक रिसेसिव डिसीज है। इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब इसमें अल्फा चेन का जो सिंथेसिस है वो 2 जीन से बनता है, HBA1 और HBA2, जो कि क्रोमोसोम 16 में है। और इसका सिंथेसिस जो बीटा चेन का है वो एक ही जीन से कंट्रोल होता है जो कि क्रोमोसोम 11 में है। अब इसके वजह से हीमोग्लोबिन का अगर चेन इफेक्ट हो जाता है तो थैलेसीमिया को अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। इसमें या तो वो म्यूटेट होता है या डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होता। थैलेसीमिया में जो पर्सन है वो एनीमिया के जैसे सिम्टम्स दिखाता है, उसके अंदर बॉडी में खून की कमी होती है, येलो स्किन दिखाई देता है उसके बॉडी पे, उसका साइज और शेप जो है आरबीसीज का बदलता है, डेवलपमेंट स्लो होता है, उसका यूरिन का कलर चेंज होता है, और ऐसे पेशेंट को बार बार बहुत सारे खून की जरूरत होती है। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से अलग है, क्योंकि थैलेसीमिया जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जहाँ पे ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने के बनता है, और दूसरा जो है यानी कि सिकल सेल एनीमिया ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जहाँ पे वो बराबर से सिंथेसाइज नहीं होता। तो थैलेसीमिया में कम सिंथेसाइज होता है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, कम होता है। और इसमें क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया में वो बराबर से नहीं। Down syndrome, 21st trisomy. Down syndrome is named after physician John Langdon Down, who first described this autosomal chromosomal disorder in 1866. This syndrome is caused due to an extra copy of chromosome number 21st.
it shows presence of 3 copies of 21st chromosomes instead of homologous pair. These individuals will have 47 chromosomes instead of normal number for 46. 21st trisomy occurs due to non-disjunction or failure of separation of chromosomes during gamete formation. The incidence of non-disjunction is distinctly higher in mothers who are over 45 years old. These patients have mild or moderate mental retardation and skeletal development is poor. Distinct facial features like small head, ears and mouth. Face is typically flat and rounded with flat nose, open mouth and protruding tongue. Eyes slant up and out with internal epicanthal folds. Flat hands and stubby fingers and palm is broad with single palmar crease. तो डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन ने इसको आइडेंटिफाई किया था. इसमें बेसिकली 21st क्रोमोसोम के 3 कॉपीज होते हैं जबकि 2 ही होने चाहिए. ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि ऑटोसोमल जब क्रोमोसोम्स बनते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे तो ये बराबर से सेपरेट नहीं होते. ये मोस्टली उन मदर्स में पाया जाता है जिनकी 45 से ज़्यादा एज है. इनके मेंटल कैपेसिटी में थोड़ा फ़र्क होता है और इनका फेस का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि ये इनको डाउन सिंड्रोम हुआ है. इनकी सर छोटा होगा, कान और मुंह भी छोटा होगा, फेस फ्लैट होगा, नोज फ्लैट होगा, मोस्टली मुंह खुला ही रखते हैं और टंग्स जो है बाहर रहेंगी, आंखें जो हैं वो स्लैंटिंग अप रहेंगी और हैंड्स फ्लैट होंगे और स्टबी रहेंगे. इससे समझ में आता है कि इनको डाउन सिंड्रोम है. कैरियोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम दिया है. देखो हर क्रोमोसोम डबल है, लेकिन 21st क्रोमोसोम जो है वो ट्रिपल है, जिसकी वजह से इसको ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कहते हैं. Turner syndrome, X monosomy, XO females. It is sex chromosomal disorder caused due to the non-disjunction of chromosome during gamete formation. Individual born with Turner syndrome has 44 autosomes with XO. They are phenotypically female. They have a short stature, height and webbed neck, lower posterior hairline, broad shield-shaped chest, poorly developed ovaries and breast, and low intelligence. तो टर्नर्स क्रोमोसोम जो है ये एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम जो है वो बराबर से अलग नहीं होता. और इसमें जो है इनके 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्सो होता है. ये लोग फिनोटाइपिकली फीमेल होते हैं, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें, उनकी हाइट कम रहती है, उनका नेक जो है वेबिंग होता है, हेयर लाइन जो है पीछे का वो और नीचे तक आता है, इनका चेस्ट शील्ड के शेप का होता है और इनकी ओवरीज और ब्रेस्ट जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं. इनका इंटेलिजेंस भी नॉर्मल लोगों से कम होता है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XXY males. It is chromosomal disorder caused due to extra X chromosome in males. Thus, genotype of individuals is 44 plus XXY. They are described as feminized males. Extra chromosome is a result of non-disjunction of X chromosome during meiosis. Individual is male and has overall masculine development. Voice pitch is hard and have underdeveloped testes. They are tall with long arms, feminine development of breast, that is gynecomastia, and no spermatogenesis. Therefore, individuals are sterile. तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसको होता है उसके क्रोमोसोम्स XXY होते हैं, यानी कि 2 फीमेल क्रोमोसोम और 1 मेल क्रोमोसोम. इनको फेमिनाइज मेल कहा जाता है. ये टेक्निकली तो मेल होते हैं, इनकी बॉडी मैस्कुलिन होती है, इनका वॉइस बहुत ही हार्श होता है और इनके टेस्टिस डेवलप नहीं होते. इनके आर्म्स लंबे होते हैं और इनको मेल होने के बावजूद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है जिसको गायनोकोमास्टिया कहते हैं, और इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता. इसकी वजह से ये जो लोग हैं वो स्टेराइल होते हैं, इनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं. एनी क्वेश्चंस? चिपका हुआ